ذیل میں عزت نفس کے موضوع پر ایک مفصل اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے، مختلف ابواب اور ذیلی عنوانات پر مشتمل ہوگا تاکہ قاری کو عزت نفس کے معنی، اہمیت، اسلامی نقطہ نظر، اس کے عناصر، کم زیادہ عزت نفس کے اسباب اور اسے مضبوط بنانے کے عملی طریقوں کا جامع اور مفصل ادراک حاصل ہو تو معدانسان زندگی میں عزت نفس ایک ایسا بنیادی جزو ہے جو شخصیت کی تشکیل اور سماجی تعلقات کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسان میں اپنی قدر اور اہمیت کا شعور ہوتا ہے تو وہ نہ صرف خود پر اعتماد سے کام لیتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی صحت مند انداز میں قائم کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم عزت نفس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس کی تعریف، اہمیت، علامات، اسلامی نقطہ نظر، کمزوریوں کے اسباب، بڑھانے کے طریقے اور عملی مشورے۔ عزت نفس کی تعریف۔ عزت نفس سے مراد وہ اندرونی کیفیت ہے جس میں فرد اپنے آپ کو قابل احترام اور قابل قدر سمجھتا ہے۔ اردو اصطلاح میں عزت نفس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے وجود، صلاحیتوں، اقدار، اخلاقی اصولوں اور سماجی مقام کو ایک مثبت تناظر میں دیکھتا ہو۔ ذاتی وقار۔ عزت نفس کا تعلق اپنے آپ کو ایک وقار والا فرد سمجھنے سے ہے۔ خود اعتمادی، اپنے فیصلوں، صلاحیتوں اور اقدار پر اعتماد رکھنا بھی عزت نفس کا حصہ ہے۔ اخلاقی معیار، اپنے اندر اصول اور ضابطے کے مطابق عمل کرنے سے بھی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزت نفس کی اقسام۔ عزت نفس کو عموماً درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک، بنیادی عزت نفس بیس لائن، یہ وہ سطح ہے جو انسان پیدائشی یا ابتدائی ماحول، خاندانی، تربیتی اور ثقافتی فیکٹرز کے زیر اثر محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں والدین کی محبت، حوصلہ افزائی اور مثبت فیڈ بیک سے عزت نفس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ دو، حالتی عزت نفس سچویشنل ایور کنٹیجنٹ۔ وہ عزت نفس ہے جو مخصوص حالات، کامیابیوں یا ناکامیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ کسی امتحان میں کامیابی یا کام میں سراہا جانا وقتی خوشی اور عزت نفس میں اضافہ لاتا ہے، جبکہ ناکامی یا تنقید وقتی طور پر عزت نفس کو متاثر کرتی ہے۔ تین، مضبوط اور پائیدار عزت نفس سٹیبل۔ جب انسان نے اندرونی طور پر اپنی قدر کا مستقل احساس قائم کر لیا ہو تو یہ عزت نفس اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں یا خراب، انسان کا خودی کا شعور مستقل رہتا ہے۔ چار، غلط اور مبالغہ آمیز عزت نفس انفلیٹڈ اور نارسسسٹک۔ اس میں انسان اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اہم اور بہترین سمجھتا ہے، حد سے زیادہ خود پسندی اور خود غرضی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اکثر دفاعی میکانزم کے تحت جنم لیتی ہے، جب اندر کمزوری اور بے اعتمادی چھپانے کے لیے خود کو بے انتہا اہم دکھایا جائے۔ عزت نفس کی اہمیت۔ عزت نفس کی اہمیت اس لیے بھی بے حد ہے کیونکہ یہ انسان کی ذاتی نشو و نما، سماجی تعلقات، فیصلے کرنے کی صلاحیت اور ذہنی و جذباتی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ ذہنی سکون اور خوشی۔ صحت مند عزت نفس رکھنے والا فرد عام طور پر کم اضطراب اور کم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو قبول کرتا ہے اور اپنے اہداف کے حصول کے سلسلے میں حقیقت پسندانہ توقعات رکھتا ہے۔ دو، مثبت تعلقات۔ خود پر اعتماد اور وقار رکھنے والا شخص دوسروں کے ساتھ حدود، باؤنڈریز کا احترام کرتا ہے اور دوسروں کی حدود کا بھی احترام کرتا ہے۔ نجتاء تعلقات زیادہ متوازن، باعزت اور پائیدار رہتے ہیں۔ تین، فیصلہ سازی۔ عزت نفس سے آراستہ انسان زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو اپنی قدر کا شعور ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کرنے کے بجائے اپنی سوچ اور اصول کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ چار، ناموافق حالات سے نبردآزمہ ہونا۔ مصیبت اور چیلنجز کے وقت مستحکم عزت نفس والا فرد امید اور حوصلے کے ساتھ مسائل کا سامنا کرتا ہے اور حل کی جستجو میں رہتا ہے۔ پانچ، سماجی شمولیت اور قیادت۔ عزت نفس پیدا کرنے اور برقرار رکھنے والے لوگ عموماً خود اعتماد رہنما بن سکتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ مثبت تبدیلی کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ چھ، تخلیقی اور پیشہ ورانہ ترقی۔ جب انسان اپنے افکار اور صلاحیتوں میں اعتماد رکھتا ہے تو نئی چیزیں سیکھنے، جدت، انوویشن اور کرتو کام کرنے میں زیادہ پیش قدمی کرتا ہے، جس سے پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع بڑھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام میں عزت نفس کا تصوف اور نفسیات کے موجودہ تصورات سے کچھ مشترکات ہیں اور قرآن و حدیث میں بھی خود کی قدر، وقار اور شعور نفس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ ایک، قرآن میں انسان کی عظمت۔ قرآن مجید میں انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔
विलकत करोमिना बनी आदम। इस आयत से इंसान को इसकी फितरी वक़ार और इज़्ज़त का शऊर मिलता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों के साथ नवाजा और इसमें इज़्ज़त नफस की बुनियाद रुके, मगर ये भी वाज़ेह है कि ये इज़्ज़त अल्लाह की नाराज़गी या इताअत से दूरी की सूरत में ज़ाय हो सकती है। 2. तवाज़ुन और एतदाल। इस्लाम में मुबालगा आमेज़ तकब्बुर, गुरूर को मना किया गया है, जैसा कि सूरत लुक़मान में फरमाया, वेलियाता से उनरख दु एवेल नल नुएस वेलियात मशफन अलैरज़न मेरे हालिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुए अलवियलिया आम्बुआ वालुए माखते अल्फ़े खावर। लुक़मान 18। यानी लोगों के सामने तकब्बुर घमंड न करो। ये बताता है कि इज़्ज़त नफस दुरुस्त मानी में होना के गुरूर खुद पसंदी। 3. तकर्म दीगरान और एहतराम नफस। इस्लाम में दूसरों की इज़्ज़त और वक़ार का एहतराम भी ज़रूरी है। इसी हदीस में आया कि किसी मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमान के लिए हुर्मत रखते हैं। इसमें इंसान को ये भी सीखने को मिलता है कि वो अपनी इज़्ज़त नफस को समझते हुए दूसरों की शख्सियत का भी एहतराम करे। 4. तौबा और खुद एहतिसाबी। जब इंसान कोई गलती करता है तो सच्चे दिल से तौबा करना और खुद एहतिसाबी करना इज़्ज़त नफस का इजहार है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी और वक़ार का शऊर रखता है। नफस की इस्लाह और अल्लाह के नज़दीक रुजू करना एक मुस्बत अमल है जो इज़्ज़त नफस को मजबूत करता है, क्योंकि फ़र्द जानता है कि इसकी कदर अल्लाह के यहाँ है और वो अपनी गलतियों से सीखता है। 5. तवक्कल और उम्मीदुल्लाह पर। तवक्कल और सख्त हालात में उम्मीद रखना भी इज़्ज़त नफस का हिस्सा है। इस्लाम सिखाता है कि मुश्किलात में अल्लाह से रुजू करो और यकीन रखो कि अल्लाह बेहतर तदबीर करेगा। इस से इंसान की अंदरूनी क़ुव्वत और वक़ार में इजाफा होता है। 6. अमल और किरदार की बुलंदी। इस्लाम में नेक किरदार, शाइस्तगी और इसार की बहुत फजीलत है। जब इंसान अच्छे अमल इख्तियार करता है, लोगों के बारे में नेक सोचता है और मदद करता है, तो इसकी इज़्ज़त नफस भी तक़वियत पाती है, क्योंकि इसका शऊर ये कहता है कि वो इखलाकी बुलंदी पर कायम है। खुद एतमादी और इज़्ज़त नफस का ताल्लुक अगरचे खुद एतमादी और इज़्ज़त नफस के दरमियान फ़र्क है, मगर दोनों बाहम मरबूत। इज़्ज़त नफस अपने आप की कदर व मंजिलत का शऊर। खुद एतमादी मखसूस काम असलाहियत में एतमाद। मिसाल, कोई शख्स खुद को बतौर इंसान काबिल वक़ार समझता है, इज़्ज़त नफस, मगर किसी खास शोबे जैसे तकरीर या जमालियाती हुनर में कम खुद एतमादी महसूस कर सकता है। मगर मजमूई तौर पर अगर उसका इज़्ज़त नफस मजबूत होगा तो वो खुद एतमादी की कमी पूरा करने की कोशिश करेगा, वसाइल तलाश करेगा, मुस्बत सोच अपनाएगा। इज़्ज़त नफस कम होने की वजूहात। कई अवामिल इज़्ज़त नफस को मुतासिर कर सकते हैं। ज़ैल में चंद अमूमी असबाब बयान किए जा रहे हैं। 1. तरक्की के इब्तिदाई मराहिल। बचपन में वालिदैन, असातिज़ा माहौल की मनफी बातें, बेएतनाई या बेरहमी इज़्ज़त नफस पर मनफी असर डाल सकती। अगर बचगाना उम्र में मुसलसल तनकीद गैर हकीकी तवक्कुआत सामने आएँ तो आइंदा खुद एतमादी मुतासिर होती है। 2. समाजी मवाजना, सोशल कंपैरिसन। दूसरों से अपने आप का मवाजना बार बार करना और खुद को कमतर समझना इज़्ज़त नफस घटा देता है। सोशल मीडिया के दौर में ये तासुर और भी बढ़ गया है कि हर कोई बेहतर जिंदगी गुजार रहा है वगैरह, जिससे खुद को कमतर महसूस करना आसान होता है। 3. नाकामियां और तनकीद। अगर नाकामियों पर काबू पाने तनकीद का मुस्बत रुख इख्तियार न किया जाए तो इंसान में खुद एतमादी मुतासिर होती है और मुस्तकिल नाकामी के खौफ से इज़्ज़त नफस कमज़ोर हो सकती है। 4. मनफी खुद गुफ्तार, नेगेटिव। खुद को मनफी तौर पर बयान करना, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं वगैरह से खुद की कदर घटती है। 5. ज़ाती या पेशा वराना मसाइल। बेरोज़गारी, रिश्तेदारियों में झगड़े, माली मुश्किलात, सेहत के मसाइल वगैरह वक्ती या दायमी तौर पर इज़्ज़त नफस को मुतासिर कर सकते हैं। 6. सकाफ़ती या मुआशरती तवक्कुआत। मुआशरे ख़ानदान की तरफ से बेजा बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखी जाएं और फ़र्द उन पर पूरा ना आतर सके तो खुद को कमतर महसूस करता है। 7. परफेक्शनिज़म। हर मामले में मुकम्मल कमाल चाहना और जब कमाल हासिल ना हो तो खुद को तनकीद का निशाना बनाना इज़्ज़त नफस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 8. दिमागी सेहत के मसाइल। डिप्रेशन, एंग्जायटी दीगर ज़हनी अमराज भी
इज्जत नफस को मुतासिर करते हैं। बाज़ औक़ात ये बीमारी खुद इज्जत नफस को घटाती है। बाज़ औक़ात कम इज्जत नफस ज़हनी अमराज का सबब बन सकती है। इज्जत नफस बढ़ाने के अमली तरीक़े। इज्जत नफस की इस्लाह और मजबूती के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ज़ैल में मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश हैं। एक, खुद शऊरी और खुद एहतिसाबी। अपने एहसासात, ख़यालात और रवैयों को जांची, मुस्बत और मनफी पहलुओं की फहरिस्त बनाएं। मसलन कौन सी आदात ख़यालात इज्जत नफस बढ़ाती हैं, कौन सी घटाती हैं। रोज़ाना मुख्तसर वक्त निकाल कर खुद से सवाल करें, आज मैंने कौन से ऐसे अफ़ाल किए जिनसे मेरी इज्जत नफस में इजाफा हुआ और कौन से जिनसे कमी। 2, मनफी खुद गुफ्तार का खात्मा। मनफी ख़यालात को मुस्बत मुतबादिल से तब्दील कर मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ जैसी सोच आए तो इसे रोक कर कहीं, मैंने माजी में भी चैलेंजेस का सामना किया और सकेम कोशिश करके देखूंगा और तरक्की करूंगा। खुश गुजारिशां एफर्मेशंस लिखी। मसलन, मेरी राय काबिल एहतराम है, मैं अपने फैसलों का जिम्मेदार हूँ और रोज़ाना बार बार दोहरा कर जहन में बिठाएं। 3, उसूल, इल्म और महारतों की तरक्की। नहीं महारतें सीखी या मौजूदा को बेहतर बनाएं। जब इंसान महसूस करता है कि वो किसी शोबे में माहिराना या बेहतर सलाहियत रखता है तो इज्जत नफस में इजाफा होता है। कोर्सेस, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग या किताबों के जरिए खुद को फ़रोग़ दें। 4, मकासद का तयन और हुसूल। हकीकी और हकीकत पसंदाना रियलिस्टिक अहदाफ मुकर्रर करें। छोटे कदम उठाकर हासिल होने वाले अहदाफ आपको हौसला देंगी। कामाबोहे को नोट करें। रोज़नामचा या डायरी में अपने छोटे बड़े अहदाफ और उनके हुसूल को लिखी ताकि आप देख सकें अपने क्या पेशरफ्त की। हुसूल मकासद से हौसला पैदा होता है और इज्जत नफस मुस्तहकम होता है। 5, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी। वर्जिश, जिस्मानी मशक़ें ज़हनी सेहत पर मुस्बत असर डालती। वर्जिश से एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं जो मिजाज को खुशगवार बनाते। खुद को सेहतमंद जिस्म के मालिक के तौर पर महसूस करना इज्जत नफस को मजीद मजबूत करता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक ज़हनी तवानाई बढ़ाती है। मुनासिब नींद जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है। जब नींद पूरी होती है तो खुद एतमादी और तवज्जो बेहतर होती है। 6, समाजी ताल्लुकात और हुदूद का क़याम। अहले ईमान मुस्बत रिवायती अफराद और ऐसे दोस्तों के साथ मील जौल बढ़ाएं जो हौसला अफजाई करते हों। ऐसे माहौल में रहकर इंसान अपनी कदर बेहतर तरीके से समझ पाता है। दूसरों के साथ हुदूद, बाउंड्रीज तय करें जहां एहतराम होता हो। जिन ताल्लुकात में मुस्तकिल तौर पर आपको कमतर या तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनसे फासले रखने की तदबीर करें। 7, दूसरों की मदद और समाजी रज़ाकाराना खिदमत। दूसरों की मदद करना इंसान को अपनी अहमियत का एहसास दिलाता है। किसी खैराती या समाजी काम में शमूलियत से खुद एतमादी बढ़ती है और ये शऊर पैदा होता है कि आपकी काविशें दूसरों के लिए मानी रखती। आवासलाम नुक्ता नज़र से भी सबका खैरात या खिदमत खुल्क का अमल दिल को तस्कीन देता है और इज्जत नफस में बरकत लाता है। 8, मसरूफ़ रहना और मुनज़्ज़म ज़िंदगी। वक्त का सही इस्तेमाल और मुनज़्ज़म रूटीन इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती है। बेमकसद वक्त ज़ाय करने से ग्रेज़ कर मशागिल, हाबीज़ इख्तियार करें। मूसीकी, मुसव्वरी, मुताला, बागबानी वगैरह मशगले इंसान को